Check. Okay, welcome to those who are joining us online as well. And जो ऑनलाइन से जुड़े हैं उनका स्वागत है. okay, so why don't we pray and then we'll get started, right? क्यों ना हम प्रार्थना करें और शुरुआत करेंगे. Okay, let's look to the Lord in prayer. हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान रखाएंगे. Let's just quieten our hearts हम अपने मन को शांत कर लें and ask the Lord to speak to us. और परमेश्वर से बात बोलें कि हमसे Right. बातचीत करें. Let's prepare our hearts to receive His word. और हमारे मन को प्रभु के पास प्राप्त करने के लिए तैयार करें. And may the Holy Spirit write His word upon our hearts. और हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा उसके वचन को लिख दे. And one of the things that we can pray is ask the Lord to increase our capacity to receive His word. और उसके वचन को प्राप्त करने की क्षमता हम में प्रभु परमेश्वर बढ़ा दे करके हम प्रार्थना कर सकते हैं. Let's ask the Lord to enhance our spirit, increase the spirit so that we can receive more from Him. और हमें प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो स्वीकार करने की क्षमता है उसको और ज्यादा बढ़ा दे. Just go ahead and ask the Lord for that. और आगे अपने आप में उस विषय में प्रार्थना कीजिए. Lord, increase our appetite, increase our hunger for you. प्यास आपके वचन के प्रति, आपके प्रति बढ़ा दे परमेश्वर. प्रार्थना करें. We ask this afternoon, even as we come to your presence, Lord, that you speak to us. Can I get your food? प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर की आज दोपहर के समय आप हमसे बातचीत करें. And we ask, oh Father God, that our minds will be stayed on you, Father God. और हमारा मन जो है आप पर केंद्रित रहे करके प्रार्थना करते हैं. That we will not be distracted, but you enable us to focus on you. हम किसी भी चीजों के द्वारा विचलित ना हो पाए, हम आप पर ध्यान से रहें. And yes, Lord, give us clarity in our thinking. हमारे सोच विचार में स्पष्टता दीजिए करके प्रार्थना करते हैं. And enable us to receive all that you are pouring into our lives. और जो कुछ आप हमारे जीवन में डाल रहे हैं, उंडेल रहे हैं, हम उसको प्राप्त कर पाएं. And so even right now we give you all the praise and all the glory. और अभी इस समय में हम आपको पूर्ण स्तुति और आराधना चढ़ाते हैं. Let's take some time to just pray in tongues, pray in the Spirit. और आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा के अन्य भाषाओं में होकर, जितनों को वरदान मिला वो लोग अपने अन्य भाषाओं में बोलकर कुछ समय प्रार्थना even as we pray in the Spirit, let all the tiredness and emptiness and let it all just leave us right now. और जब हम प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाओं में आराधना करते हैं, हमारे अंदर जो थकान है, निर्बलता है, सोने की आत्मा है, वो सब दूर हो जाए. Yes, Father God, build us in the inner man, God. Yeah, I just want everyone to just press in and pray, right? Should I pray? और सब लोगों से अनुरोध है कि अपने मन को पूर्ण रूप से प्रभु के पास रखते हुए और अपने प्रार्थना में जोर लगाते हुए प्रार्थना करें. The Bible talks about being fervent in prayer. परमेश्वर की वचन बताता है कि हम परमेश्वर की प्रार्थना में और गंभीरता के साथ रहें. So be fervent in your prayer. और अपने प्रार्थना में गंभीरता के साथ प्रार्थना करें. And those of you who have not yet, started praying in tongues, you can take that step of faith right now. और जितने लोगों में आप में से लोगों में अन्य भाषाओं में आराधना करना नहीं शुरू किया, अभी वो विश्वास का कदम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं. You can take a risk. You can make those or say those words that God is putting in your hearts. और परमेश्वर आपके मुंह के अंदर जो वचन दे रहा है, जो पद दे रहा है, जो शब्द दे रहा है, अन्य भाषाओं के वरदान के अनुसार उसको इस्तेमाल करना शुरू करें. Change. Yes, Father God, help us show the capacity to receive
Sit right here. Sit right. Jesus, my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Speak to us, refresh us. Yes, Lord, we are yielded to you, Father God. Feel the strength coming in, being built up in the inner man. Rise up, rise up, rise up in strength. Just be mindful of what the Lord is speaking, what the Lord is showing in your heart. और आप सचेत रहें कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है आपके मन में, और परमेश्वर आपके मन में क्या दिखा रहा है उसके बारे में सचेत रहें। Just make a note of it. और आप उसके बारे में ध्यान दें, और पवित्र आत्मा आपसे क्या बातचीत कर रहा है, और वो अगर लिख सकते हैं लिख के रख लें जरूर। Thank you, Father. Thank you, Lord. Bless you. Give you all the praise, Father. Yes, Lord, we thank you for this time in your presence, Lord. हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी इस उपस्थिति में, yes, Lord, continue to lead us into all that you have for us this afternoon. इस दोपहर के समय जो कुछ चीजों को हमें सिखाना चाहते हैं उसमें हमें आप अगुवाई करें। And we pray, Father God, that we, even as we come with expectation, Lord, that we may receive from you in faith. और हम जब उम्मीद के साथ आपके पास आते हैं और विश्वास से हम सबको स्वीकार कर सके पिता। Yes, Lord, let truth be imparted to our hearts today. और सच्चाई हमारे हृदयों में बांटा जाए प्रभु जी। Let strongholds be broken today. और आज जो है दुष्ट ताकतों के बंधन टूट जाए पिता। Let burdens, oh God, be taken away, Father God. हमारे हृदयों से भार निकल जाए प्रभु जी। And Lord, you come, rule and reign in our lives, Father God. और आप आए और हमारे जीवन में आपका अधिकार जमाए करके Yes, Lord, be enthroned in our hearts, Father God. और हमारे हृदयों के अंदर आप अपना स्थान बनाएं। We just invite you to be the Lord of our lives. हम आपको हमारे जीवन का प्रभु के रूप में न्योता देते हैं पिता परमेश्वर। We thank you, in Jesus' name we pray. हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Right? If you look at Mark chapter 4, मरकुस का अध्याय 4 में अगर आप देखेंगे, there's the Lord Jesus in the parable of the sower, he talks about one explanation he gives. और मरकुस रचित सुसमाचार 4 में अगर अपना ध्यान दौड़ाएंगे तो उसमें एक बीज बोने वाले के बारे में परमेश्वर बताता है। Okay, in Mark chapter 4 and verse 24, मरकुस रचित सुसमाचार 4 का 24 में, it says, take heed what you hear, or be careful what you hear. With the same measure that you use, it will be measured to you. और ध्यान दें आप किस विषय को क्या सुनते हैं, ध्यान दें कि आप क्या बोलते हैं। जिस मापदंड से आप तुलना करते हैं उसी मापदंड से तुम्हारा भी तुलना किया जाएगा। Right? And it says it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. और जो ज्यादा सुनता है उसको ज्यादा दिया जाएगा। So what is the measure that we go to God with is very important. और जो क्या मापदंड हम लगाकर परमेश्वर के हुजूरी में जाते हैं या उपस्थिति में जाते हैं वो मुख्य है। Right? So what does it mean to, when it says what measure are you using? और क्या मापदंड इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या है? Like it means, you can go to God with a spoon or a tumbler. और आप जो है परमेश्वर के उपस्थिति में एक चम्मच या एक ग्लास लेकर जा सकते हैं। And say, okay, God, you fill me. I've come to learn from you. You fill me. और हम कहते हैं कि परमेश्वर हम आपसे सीखने के लिए आए हैं, हमें भर दें। Right? Or you can go with a big vessel or a big burden and say, Lord, this is the measure I've come to with.
और बड़े विशाल बर्तन के साथ हम लोग प्रभु के हुजूरी में जा सकते हैं और कहते हैं ये है जो पात्र है, इसके साथ हम आपके हुजूरी में So the Lord doesn't define what kind of measure you should use. और परमेश्वर कभी भी ये निर्णय नहीं करता है कि क्या मापदंड आप लेकर उसके पास आए, But he says that the same measure that you use to come, and it will be measured to you. और परमेश्वर कहता है कि जिस मापदंड के साथ मेरे पास तुम आओगे उसी मापदंड के अनुसार तुम्हें दिया जाएगा. So he's talking about hunger, it's talking about interest levels. और वो हमारे भूख के विषय में और हमारी इच्छा के तल के विषय में बात कर रहा है. Right? So the Lord doesn't put any limits on that. और वो परमेश्वर जो है कोई भी सीमा उसके प्रति नहीं लगाता है. So we don't have to put any limit on ourselves. और हमें किसी भी प्रकार का सीमा हमारे जीवन के बारे में भी नहीं लगाना Right? So है. we can go before him और वो हम उसके सामने जा सकते हैं expectantly और उम्मीद के साथ and say, God, I come with this huge measure, fill it. और कह सकते हैं कि प्रभु इस मापदंड के साथ हम आपके पास आते हैं, एक विशाल मापदंड के साथ हमें भर दे. Right? So whether it's revelation, knowledge or understanding, the Lord will give. और Lord will pour out. चाहे वो प्रकटीकरण के बारे में क्यों ना हो या बुद्धि के विषय में क्यों ना हो, वो जरूर भरेगा. Amen. Amen. Right? So in the beginning of every class, every day, you can ask the Lord, Lord, I'm come with this big measure, fill me, Lord. और हम हर एक क्लास के आरंभ में ये हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि प्रभु इतने विशाल मापदंड के साथ आपके पास आए हैं, हमें भर दो. Right? And the Lord will do that. और परमेश्वर वो जरूर करेगा. Amen. Amen. Okay. So where did we stop last class yesterday? कल कहां पर हमने रोका था, याद है? Right? अब्राहम का आशीष. Okay. One person. Okay, the blessings of Abraham. अब्राहम के द्वारा प्राप्त हुए आशीष. So we looked at the way in which Abraham was blessed. हमने देखा कि किस प्रकार से अब्राहम को आशीष मिला था. And we saw the connection that God is saying that I have redeemed you so that you can also have the blessing of Abraham. और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है, इस कारण से तुम्हें भी अब्राहम के आशीष में अवकाश या भाग मिल सकता है. Right. So where did we see that? We saw that in Galatians chapter 3. हमने गलातियों की पत्री 3 अध्याय में हमने उसके विषय में देखा था. So it's a very important verse. वो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. Right, because this verse applies to us personally as believers. और ये हमारे विश्वासी होते निजी जीवन में ये लागू होता है. Right, it says that God in Christ has redeemed us, taken us out. और ये कहता है कि परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें छुटकारा दिया है. He has redeemed us from sin. उसने हमें पाप से छुड़ाया है. He has redeemed us from every curse of the law. और सारे नियम के श्राप से हमें उसने छुड़ाया है. And why did he redeem us? और क्यों हमें उसने छुड़ाया है? So that the blessing of Abraham can come on us. ताकि अब्राहम का जो अनुग्रह है, अब्राहम का जो आशीष है, हम पर भी प्रकट हो सके. Right? And the Bible also says that you might also receive that, we might also receive the promise of the Holy Spirit. और वो परमेश्वर कहता है कि उसके साथ साथ परमेश्वर के वादे जो है वो भी तुम्हारे जीवन में प्राप्त करो. Okay, this is the only reason he redeemed us. और ये कारण है जिसके कारण से हमें उसने छुड़ाया है. So in what way was Abraham blessed? और किस प्रकार से अब्राहम को अनुग्रह प्राप्त हुआ था, बताएं. कल पढ़ा था. Okay, so he was blessed in material blessings. और सामग्री के विषय में वो बहुतायत से अनुग्रह को प्राप्त किया था. Right? And he was also called the friend of God. और उसको परमेश्वर का दोस्त करके बुलाया जाता था. Right? When it came to Sodom and Gomorrah, जब सोदोम और गमरा के विषय आता है, the Lord wanted to destroy for the wickedness of that land. और वो देश के मतलब विनाश के कारण, भ्रष्ट के कारण परमेश्वर उसको खत्म करना, नाश करना चाहता था. Right? And then he says, how can I not tell Abraham he is my friend? और परमेश्वर बोलता है कि मैं कैसे अब्राहम को ना बोलूं क्योंकि वो मेरा दोस्त है. So that was also a blessing. वो एक अनुग्रह था.
And Abraham never lost a battle when he went to, win against the kings. और वो जब राजाओं के विरोध में गया था युद्ध के विषय में, वो कभी भी हारा नहीं था। Right? So we see that these are all the blessings that Abraham enjoyed because of his fellowship with God. और ये सब अनुग्रह है हम जो देख सकते हैं अब्राहम ने प्राप्त किया क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ संबंध के कारण। So all these blessings, the Bible says, they are for us. और परमेश्वर का वचन कहता है ये सारे अनुग्रह जो है हमारे लिए भी है। So we can receive it. और हम स्वीकार कर सकते हैं। Right? We need to be aware of it. We need to receive it and walk in it. हमें उसके विषय में जानकारी प्राप्त होने की जरूरत है। Okay. So another thing that we see here in that particular verse, और दूसरा एक और चीज हम इस वचन के अंदर से देखते हैं, it says that Christ has redeemed us from the curse. और उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने हमें श्राप से छुड़ाया है। He has redeemed us from the curse of the law. और उसने नियम के श्राप से, अभिशाप से बचाया है, छुड़ाया है। Okay, so if you look at Deuteronomy chapter 28, हम अगर व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में अगर अपना ध्यान दें, okay, so Deuteronomy chapter 28 has many verses. I think it has about 68 verses. 28वें अध्याय में, माफ कीजिए, 28वें अध्याय में देखेंगे व्यवस्था विवरण 28, Okay. उसमें Yeah, 68 पद है। right. And in that, 14 verses are blessings. और First 14 verses. उसमें पहला 14 पद जो है वो अनुग्रह का वाक्य है। Okay, Deuteronomy 28 verses 1 to 14. These talk about the blessings of obedience. और 28 व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेके 14 तक जो है वो अनुग्रह का वचन है। And if you read from verses 15 to the end of the chapter, अगर हम 15 से आखिरी पद तक हम पढ़ते हैं, it talks about curses, वो श्राप के विषय में कहता है, the curse of disobedience. और वो अनाज्ञाकारिता के कारण जो श्राप आता है उसके विषय में। Okay, so many different kinds of curses are mentioned there. और कई प्रकार के अभिशाप के बारे में लिखा हुआ है। It's a very scary passage. और वो जो है वो एक भयान डर उत्पन्न करने वाला एक पद है जो नीचे लिखा हुआ है। It talks about disease. वो रोग के बारे में लिखा हुआ है। It talks about plague. वो महामारी के बारे में लिखा हुआ है। It talks about famine and drought. और वो जो है No rain. जो अकाल के बारे में, and the land not yielding any crops. और फसल ना उगने की अवस्था। Okay, so it talks about all the negative things. और वो सारे नकारात्मक बातों के विषय में लिखा हुआ है। And this is what, as we read through, we understand that you and I, we have been redeemed from the curse of the law. और इसको हम जब पढ़ते हैं हम समझ जाते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर ने उस नियम के अभिशाप से छुड़ाया है। So as you read verses 15 till 68, अगर 15 से लेके 68 तक पढ़ेंगे, when you look at each of these curses, और हम ये अभिशाप के विषय में एक एक कर जब देखते हैं, every curse that you read, this is what you can tell yourself. और ये हर एक जो अभिशाप है जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं, You can tell yourself that I have been redeemed from the curse of this law. और कह सकते हैं कि हम जो हैं इस नियम के अभिशाप से छुड़ाए हुए लोग हैं। Because that is what Galatians 3 very clearly states. और यही है जो गलातियों की पत्री 3 अध्याय स्पष्ट रूप से बताता है, That the Lord Jesus has redeemed us from each of these curses. और परमेश्वर ने हमें ये सारे अभिशापों से छुड़ाया है। Right? So it's a good exercise to go through. और ये अच्छा अभ्यास है कि हम इसको पढ़ें और इसमें से गुजरें। Right? It talks about disease, it talks about lack of money, it talks about all that. और ये बीमारी के बारे में,
पैसा ना होने के बारे में और कई प्रकारों के विषय में बताता है। And you can say, I have been redeemed from this. और हम अपने आप से कह सकते हैं कि ये सारे चीजों से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। Right? According to Galatians 3 verses 13 and 14, I have been redeemed from this. और गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 के अनुसार ये सारे नियम के अभिशापों से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। And if you read verses 1 to 14 of Deuteronomy 28, और व्यवस्था विवरण के 28 के 1 to 14, 1 से लेके 14 तक अगर हम पढ़ेंगे, it talks about the blessings. वो हमें अनुग्रह के विषय में बताता है। So as you read through each of these blessings, और ये अनुग्रह के विषय में एक एक करके हम जब पढ़ते हैं, you can say, I have been blessed with this blessing because I have been redeemed from the curse. और हम कह सकते हैं अपने आप से, ये अनुग्रहों के द्वारा मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं नियम के अभिशाप से मुक्त हुआ हूं। I have been blessed with the blessing of Abraham. और अब्राहम के द्वारा प्राप्त हुई अनुग्रह से मैं अनुग्रहित हूं। Now, why are we studying all this? हम क्यों ये सब सारे चीजें सीख रहे हैं? Why are we looking into the blessings of Abraham? हम क्यों अब्राहम के अनुग्रह के विषय में देखते हैं? Can anyone tell us? Why are we studying this? क्या कोई कह सकता है, बता सकता है क्यों हम ये अब्राहम के अनुग्रह के विषय में पढ़ रहे हैं? Father of nation. No. Why are we looking at all this? Since yesterday we are looking at blessing of Abraham, etc. Why? कल से हम जो है अब्राहम में जो प्राप्त हुई अनुग्रह है उसको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं हम लोग? Yeah, one person. Yeah. He also wants to bless us in the same He manner. wants to bless us. All the blessings of Abraham are over us. No, but why did we actually start this looking into all these things? क्यों हमने ये अब्राहम के अनुग्रह के विषय में कल से देखना हमने शुरू किया? In the beginning itself, God wants to say that you are blessed. No, the thing is, see, we looked at the general promises of God. We looked at the character, nature of God. He wants to bless us. And we looked at, the blessing of Abraham and how we've been redeemed. Why are we studying this? और हमने सामान्य तरह से जो आने वाली परमेश्वर के अनुग्रह को, वादों को देखा। हमने देखा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है, हमने देखा कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। उसके बाद आगे आके हमने देखा कि अब्राहम का अनुग्रह, और अब्राहम का अनुग्रह देखा तो हमने क्यों देखा? Why are we studying this? क्यों हम पढ़ रहे हैं इसमें से? To build our faith, right? Promise of God always remains. See, we want to be confident of one thing because we want to know for sure that it is God's guarantee to bless his people. और हमें ये आश्वसित रहना है कि परमेश्वर का एक गारंटी है हमारे प्रति कि वो अपने बच्चों को अनुग्रहित करेगा। We need to be confident that yes, God wants to bless. और हमें जो है आश्वसित रहना है कि आत्मविश्वास में रहना है कि परमेश्वर उसके अनुग्रहों को हम पर डालेगा। And that confidence has to be based on the word of God. और वो आत्मविश्वास जो है वचन के आधार पर होना जरूरी है। And we are looking at different aspects of God's word to see that indeed I can be confident that God wants to bless me. और हम वचन के अंदर से आधार पर देख सकते हैं कि हम परमेश्वर में अनुग्रहित हो सकते हैं करके ये आत्मविश्वास में रहें। So that is why we looked at the nature of God, the character of God. इसलिए हम लोगों ने परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र के बारे में देखा था। God created and he said, I bless them. और परमेश्वर ने उनका सृष्टि किया और कहा कि मैं तुम्हें अनुग्रहित करता हूं। He is called the Prince of Shalom. और वो जो है शालोम का प्रभु राजकुमार माना जाता है। We looked at the promises of God.
और हमने परमेश्वर के वादों के बारे में देखा था The general promises of God all talk about how God wants to bless. और हमने सामान्य तरीके का वादों को देखा था और देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें अनुग्रह से भरना चाहता है And then we also looked at the blessings of Abraham and how that is connected to our lives. और हमने देखा था कि अब्राहम का अभिषेक जो है अनुग्रह जो अभिषेक नहीं अनुग्रह जो है जो हमारे को भी अनुग्रह दे सकता है Then the fourth thing that we see is that God has made a covenant with us, and this covenant brings blessings. और परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है हमारे साथ और ये वाचा है जो हमारे जीवन में एक अनुग्रह को लेकर आता है Right? Even if we look at the old covenant, हम अगर पुराने वाचाओं को भी अगर देखते हैं that also talks about God wanting to bless his people. और उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को अनुग्रह देना चाहता है And so 2 Corinthians and chapter 3 talks about this new covenant. और ये दूसरा कोरिन्थियों 3:6 में ये एक नए वाचे के बारे में लिखा हुआ है He says this new covenant is even better than the old covenant. और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो नया वाचा है पुराने वाचा से भी उत्तम है Right? It says what was passing away was glorious, but what is now is even more glorious. और उसमें लिखा है कि जो बीत गया वो तो महिमा योग्य था लेकिन अब जो आया है उससे भी उत्तम है So we can be sure that God wants to bless us because of his covenant with us. और हम ये आत्मविश्वास में रह सकते हैं कि परमेश्वर जो है हमें अनुग्रहित करने के लिए है So what is a covenant? और वाचा क्या है A covenant is a promise. और एक वाचा का मतलब है वो एक वादा A covenant is made so that it cannot be broken. और एक वाचा इसलिए बांधा जाता है ताकि वो तोड़ा ना जाए Right? A contract can be broken. एक समझौता जो है उसको तोड़ सकते हैं Right? Sometimes we have this contract when it comes to our house rent agreement. It's a contract. और जो हमारे घर के भाड़े के बारे में एक समझौता होता है वो एक समझौता है वो Right. तोड़ सकते हैं It says that okay, if you want to move out of the house, then you do these things, and then this contract becomes null and void. और अगर वो घर छोड़कर हम जाना चाहते हैं उस समझौते में लिखा हुआ है कि ये सब कार्य आप कर लें इसके प्रति तो आप आपका जो समझौता है वो नहीं आगे को नहीं रहेगा Right? That contract will come to an end. That agreement will come to an end. वो समझौता जो है वहां पे खारिज हो जाएगा But the Bible talks about God making a covenant with us. और परमेश्वर जो है बोलता है कि हमारे साथ परमेश्वर एक नया वाचा बांधता है Right? He himself is making that promise, that covenant with us. और वो स्वयं हमारे साथ वो एक वाचा बांधता है And in that covenant, he says that, I want to bless and I want to prosper you. और इस वाचा के अंदर वो कहता है मैं तुम्हें अनुग्रहित और आशीषित करना चाहता हूं Deuteronomy 29 and verse 9. व्यवस्था विवरण अगर देखेंगे 29:9 में Right? It says, God says, keep the word of this covenant and do them that you may prosper in all that you do. और परमेश्वर कहता है ये जो वचन ये 29 and verse 9. हाँ उसका जो वाचा का शब्द है उसको थोड़ा पढ़ेंगे कोई हाँ बस इसीलिए वो वाचा की बातों को पालन करो और मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा Right? That you may prosper in everything that you do. और सारे चीज जो तुम करते हो उसमें तुम समृद्ध रहोगे So even in the old covenant, there is this assurance of blessing and prosperity. और पुराने वाचा में भी हमारे पास ये आश्वासन है कि हमें परमेश्वर समृद्ध करेगा And therefore, in the new covenant, it is the blessing of the old covenant plus something more. और नए वाचा में पुराने वाचा का अनुग्रह प्लस उसके साथ एक नया अनुग्रह भी जुड़ जाता है Okay, so
for all these reasons, we can be confident. और ये सारे बातों के विषय में हम आत्मविश्वास से भर सकते हैं। Okay, so which means that these reasons should be there in our heart. और उसका मतलब ये है कि ये सारे कारण जो है हमारे हृदय में होना चाहिए। The word of God says, remind yourself. परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को याद दिलाते रहें, Remember, right? It says remember. याद रखें। If you look at Psalm 103, अगर भजन संगीता 103 को अगर ध्यान दे हम, okay, let's turn there. भजन संगीता 103, Okay. It says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. उसमें लिखा हुआ है, मेरे मन प्रभु का धन्य कह और सब कुछ जो मेरे में है प्रभु का धन्यवाद कर। Okay, what does verse 2 say? Somebody read. दूसरा पद क्या कहता है, थोड़ा पढ़ें कोई एक। Right. So it says, bless the Lord, O my soul, and forget not, which means remember और all his benefits. और उसमें लिखा हुआ है, मेरे मन पर यहोवा को धन्यवाद कहो और उसकी किसी उपकार को भूलना नहीं। Right. So don't forget it. भूलना नहीं, Remember it. याद रखना। So we need to remember his benefits. और हमें उसके अनुग्रहों के विषय में याद रखना बहुत जरूरी Because a है। lot of things would happen to take away that remembrance. और कई बातें ऐसी आएगी जो हमें उस अनुग्रहों को याद रखने से हटा सकता है, But we need to remind ourselves. लेकिन हमें अपने आप को याद दिलाते रहना Right? है। This is what God says in his word. और ये है जो परमेश्वर अपने वचन में बातचीत करता है। These are the reasons that God gives in his word. और ये कारण है कि परमेश्वर उसके वचन में हमसे ऐसा बातचीत करता है। So I will not be moved by feelings or emotions, but I will be moved only by the word of God. और मैं किसी भी सोच या विचार के अनुसार हटूंगा नहीं, लेकिन हटूंगा तो परमेश्वर के वचन के अनुसार। So we need to make that choice. वो हमें एक निर्णय लेने की जरूरत है। Right? We need to make that decision. हमें एक निर्णय में आने की जरूरत है। Right? A strong decision. एक बलवंत निश्चय निर्णय। But for that, we need to know the word of God. इस कारण इसको करने के लिए हमें जो है वचन का ज्ञान होने की जरूरत है। And that's why we know we need to meditate on the word of God. और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके वचन पर मनन करने की जरूरत है। And I'm sure, all of us have read that verse, Joshua chapter 1 and verse 8. मैं जानता हूं कि हर एक व्यक्ति, आप लोगों ने पढ़ा होगा योशुआ की किताब पहला अध्याय। Okay, Joshua chapter 1 and verse 8. 1 का 8। Okay, can somebody read that, please? क्या कोई पढ़ सकता है उसको? योशुआ 1 का 8 पुराने नियम में है। Okay, so it says this book of law, you should meditate on it, right? और उसके वचन में लिखा हुआ परमेश्वर बोलता है कि ये जो किताब है इसमें तुम मनन करो। Meditate means to think deeply. और मनन करने का मतलब है कि गहराई में उतर कर सोचना। Now, we heard a lot of things since yesterday या हम कल से कई बातों को हम सीख रहे हैं about God's promises and about his assurance to bless us in order to prosper us. और उसके अनुग्रह के विषय में और किस प्रकार से वो हमें समृद्ध करना चाहता है। So the word of God encourages us to think about it over and over again. और परमेश्वर की वचन हमें जो है और प्रोत्साहित करता है कि उसके विषय में ज्यादा से ज्यादा याद करें, So that we remember, ताकि हम उसके विषयों में याद रख सकें, right? So that it stays in our minds, in our thoughts. ताकि वो हमारे मन में, हमारे सोच विचार में रह सके, So that it builds faith in us. ताकि वो हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न कर सके। So that, we come to a place of confessing, declaring that word. और उस स्थान पर हम पहुंच जाए जहां पर हम अपने मुंह से उस वचन को घोषणा करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं। And we will see change and transformation both in our lives
and in our life's circumstances. और हम हमारे परिस्थितियों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव नहीं तो एक नयापन देखेंगे। So just want to tell us that, change is not automatic. और मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, एक बदलाव जो है अचानक से अपने आप से नहीं होता। And that is why we have all these principles in the Word of God. और इसी कारणवश हमारे पास ये नियम है जो हमारे पास दिए गए हैं। Right? God wants us to receive His blessing and enjoy His blessing. और परमेश्वर चाहता है कि उसके अनुग्रहों को हम स्वीकार करें और उसका आनंद भी उठा सके। But He wants us to remember His Word and retain His Word. और वो चाहता है कि हम उसके वचन को ध्यान दे, मनन करें और उसको बार बार स्वीकार करें। Because the enemy comes to take away the Word. क्योंकि दुष्ट ताकतें आता है उसके वचन को हम में से ले जाने के लिए। And I'm sure you've read that parable. और मैं निश्चित हूं कि आपने वो दृष्टांत को पढ़ा होगा। A farmer goes and sows the Word. और एक किसान जाता है बीज बोने के लिए। Okay, the seed falls on different kinds of ground. और अलग अलग सतह पर, अलग अलग जमीन पर वो बीज गिरता है। What is that seed? वो बीज क्या है? It's the Word of God. वो परमेश्वर का वचन है। So the Lord Jesus is explaining it to them. और यीशु मसीह जो है उनको बता कर दे रहा है। Well, the seed can be sown. और वो कहता है कि बीज बोया जा सकता है। But the enemy comes to take away that seed. और दुष्ट इसलिए आता है ताकि वो बीज को वो उठा कर ले जाए। Right. So sometimes I think the enemy knows the value of the seed. और दुष्ट जानता है कि वो बीज का मूल्य क्या है। Okay, let me repeat that. The enemy knows the value of that seed. और मैं दोहराना चाहता हूं कि दुष्ट जानता है वो बीज का मूल्य। Because if that seed is sown in our hearts, क्योंकि अगर वो बीज जो है मेरे हृदय में बोया गया, if it stays with us, और वो अगर मेरे साथ ठहर जाता है, there will be result. और वहां पर जो है फल मिलेगा। Right? There will be fruit, there will be good result. और वहां पर अच्छे फल होंगे, अच्छे फल उत्पन्न होंगे। So the question is, why does the enemy come to steal? और सवाल ये है क्यों दुष्ट आता है वो वचन को चुराने के लिए? So that we remain without fruit. ताकि हम फल के बिना रह पाए। Okay? So we need to hold on to the word. हमें जो है वचन को धरे रहना है, थामे रहना है। And put Joshua chapter 1 and verse 8 into practice. और योशुआ का अध्याय 1 पहला अध्याय और 8 को कार्य में लेकर आना है। Meditate on the word. और उस वचन के ऊपर हमें ध्यान रखना है, मनन करना है। Declare the word of God. और उस वचन को घोषणा करना है। And observe to obey the word of God. और हमें ध्यान देना है कि उस वचन के ऊपर कार्य करें। So what is the result of that? और उसका फल क्या होगा? He says that you will make your way prosperous. और उसमें उसका फल ये है कि तुम अपना रास्ते को समृद्ध बनाओगे। And you will have good success. और आपके जीवन में उत्तम सफलता प्राप्त होगा। Amen. Amen. So I want you to study that verse, memorize that verse, Joshua chapter 1 and verse 8. मैं चाहता हूं कि आप जो है उस योशुआ 1 का 8 जो है आप पढ़ लें, सीख लें। Okay, right now. अभी के अभी। Okay, take some time to memorize that verse. और कुछ समय आप ले लें और उस योशुआ की किताब 1 का 8 जो है आप जो है मन में उसको बिठा ले, उसको पढ़ ले, उसको सीख ले। Okay. Everyone. हर एक व्यक्ति। Joshua chapter 1 verse 8. और योशुआ की किताब 1 का 8। So I might ask you to repeat. I might ask you to recite it now. और कुछ समय बाद आपको मैं बोल सकता हूं कि इसमें से आप बताएं हम मुझे। Yeah, it could be you. हो सकता है आप हो। It could be any one of you. आप में से कोई भी, किसी से भी मैं पूछ सकता हूं। Okay, so memorize it. इसलिए आप उसको सीख ले, पढ़ ले। योशुआ की किताब पहला अध्याय उसका 8वां पद। Okay. वचन।
Okay, done? क्या क्या? हो गया? So who can tell me now? Who can tell me that verse? देखे Anyone? देखे बिना कोई है बोल सकता है अभी? Anyone who has memorized? You can stand up and tell. खड़े हो जाए और माइक दे दे भाई को. No, ठीक खड़े है. होना है. Tell me. Yeah. Okay, everyone listen. थोड़ा ऊंचा. नहीं वो वचन क्या है? में जो लिखा है वो बताए. मतलब उसमें लिखा है कि वचन Memorize it. Learn it and say it. Memorize. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे, वो जो लिखा वो बोलना है. Okay, who can? Yeah. पता है. 1:8. Yeah. हाँ brother. और थोड़ा ऊंचा. उसके बाद ताकि तू ध्यान से, पूरा वचन, verse 8 fully. ताकि तू Who ध्यान can say से it fully? दिन और रात उसके ऊपर मनन करे, और ताकि तेरा प्रभावशाली हो और तेरा रास्ता समृद्ध हो जाए. Okay, who else? Anyone else? Pastor said. Okay, Yes. brother. Okay, very good. Let's give him a big hand. Okay, anyone else this side? और कोई इस साइड से, सेंटर This, इस साइड. 1 second. Yeah. Okay. ना मार्गरेट सिस्टर, हियर दिस साइड. ये जो सीधे बैठे हुए, आगे बैठे हुए. Yeah. Anyone? लेफ्ट हो गया, सेंटर अब राइट, उसके बाद आएंगे. यस. You use the mic, brother. You can use. भूल जाएगा. Yeah. Say it. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होने पाए, दिन रात इसी पे ध्यान करना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसको चौकसी करने में रखना, ताकि जो काम तू करे उसमें वो तो सफल हो, प्रभावशाली हो. Okay, very good. Anyone else? Okay, this side. Okay, we have that sister yes. माइक दे Yeah. दीजिए उधर. here. Okay, just pass the mic. Sorry. जल्दी Okay, जल्दी quickly. जल्दी जल्दी. Yeah. व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान लगाए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू अधिक प्रभावशाली होगा. आमीन. Okay. Right. Anyone else? This section? इस साइड कोई. Anyone? Just put your hand up. Mike will come to you and you can say पीछे it. पीछे. Okay. Yes. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा. Praise God. Okay. So the thing is not to forget it. इसका ये है कि हम भूल ना जाए. Okay. Not to forget this verse, इस वचन को ना भूल जाए, but also we should not forget all the things that we have learned about why God wants to prosper us, and does God really want to prosper us? और ये भी ना भूल जाए कि क्यों परमेश्वर हमें समृद्ध बनाना चाहता है. Right? Don't forget that. उसको भूल ना जाए. And also, और it's good that we memorize this verse, और ये वचन को हम पढ़ लें, वो अच्छी बात है. but also we need to understand the meaning of this verse. और हमें इस वचन का अर्थ क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी Right? है. It's very important. बहुत जरूरी है. Okay. So the question is what is the first thing that God asks us to do? और सवाल ये है कि परमेश्वर हमसे पहला कार्य क्या करने के लिए बोलता है. Huh? No, exact वचन क्या है? वचन के अनुसार let it not go depart from your Right. mouth. Let it not depart from your mouth. So what does that mean?
अपने चित्त से उतर ना जाए करके, नहीं तो मेरे चित्त से उसका ये व्यवस्था उतर ना पाए, उसका अर्थ क्या है? एक हाथ उठा ले। always remember, द वर्ड ऑफ गॉड, or is it always speak the word of God? या फिर ऐसा बोले कि वो वचन हमेशा बोलते रहे। Right? She's saying, you remember this truth, you speak the truth. और उसका एक रीति से ऐसा बोल सकते हैं कि सच्चाई को हम जान गए हैं और उस सच्चाई को बोलते रहे। Right? So when do you have to speak the truth? और कब है जो ये सच्चाई के विषय में हमें बोलना है? Especially in difficult times. और कठिन समयों में, Right? When the circumstance is opposite of what God's word is saying. और वचन जो कहता है उसके विपरीत में जब मेरा अवस्था हो जाता है, Right? When you don't see victory, जब हम विजय को नहीं देखते हैं, and that's the moment to declare that I am victorious in Christ Jesus. वो समय है जब हमें घोषणा करना है कि मैं यीशु में सफल हूं। Right? When things are exactly opposite of what God's word declares, that's the time to speak it, declare the word. और जब मेरी परिस्थिति विपरीतात्मक अवस्था में है, उस समय है जो वचन को मेरे मुंह से उसको घोषणा करना है। So what is the second thing? और दूसरी बात आपके ध्यान में क्या आता है? पहला, चित्त से ना निकले। दूसरा, मेडिटेट। Meditate. What is the Hindi thing? Meditate? ध्यान दे। Okay, so dhyan de. So what do you do? How do you do that? मनन करना, ध्यान देना। So how do you do that? How do you meditate? किस प्रकार से आप याद करते हैं, किस प्रकार से मनन करते हैं? Lifestyle. Meditate, matlab, do you sit like that and do meditation? ध्यान देने का मतलब है कि समाधि में बैठ जाना। कैसा करना है? To put it to practice. Okay, this is how the Jewish people meditated. और ये प्रकार था यहूदियों अपना वचन के ऊपर ध्यान देते थे। Right. You think about this over and over again. वो आप उस वचन के बारे में बार बार सोचते रहे। Right. To meditate means to think deeply and to think continuously. और मनन करना या ध्यान देने का मतलब है कि उस वचन को गहराई से ध्यान देना और बार बार उसको याद करना। So the Jews would actually meditate on God's promises, meditate on His words. और यहूदी लोग क्या करते थे? परमेश्वर के वादे जो है, परमेश्वर के वचन जो है, उसके ऊपर ध्यान देते रहते So थे। they would speak these verses softly to themselves. और वो ये वचनों को अपने आप से शांत रीति से बात करते थे। And they would repeat it over and over again. और वो बार बार उसको अपने आप के प्रति दोहराते थे। Like for example, if you take Psalm 23. अगर उदाहरण से लेंगे कि भजन संगीता 23 में, I'm just taking that because we've read it so many times when we know it. और हम मैं इसलिए इसको निकालना चाहता हूं क्योंकि हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा है। Right? What does verse 1 say? The Lord is my shepherd. पहला पद क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है And I shall not want. और मुझे कोई भी घटी ना होगी। Right? There is no lack for me. और कोई भी घटी नहीं होगी। So how do you meditate on it? और इस वचन के ऊपर हम कैसे अपना ध्यान लगाते हैं? You speak that over and over again. और हम उस वचन को बार बार अपने आप के ऊपर बोलते हैं। Right? You speak that over your life. और अपने जीवन के ऊपर उस वचन को बोलते रहते हैं। The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है I will not lack any good thing. और मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। The Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है। Okay, who is the shepherd? कौन है मेरा चरवाहा? The Lord. यहोवा। The Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है। Right? He is my shepherd right now. वो अभी मेरा चरवाहा है। Whose shepherd is he? और किसका चरवाहा है? My shepherd. माइन, मेरा। Right? He is my shepherd. मेरा So चरवाहा। when we repeat it, when we meditate it over and over again, जब हम उसके ऊपर बार बार ध्यान देते या मनन करते हैं, the Holy Spirit gives revelation of different aspects of that scripture. और वो वचन के अंदर से पवित्र आत्मा अलग अलग विषयों को प्रकटीकरण करेगा। He gives you the revelation about the Lord. और परमेश्वर के विषय में वो प्रकट करके देगा। Right? The Lord is right now
my shepherd. कि ये वो प्रकट करके देगा कि यहोवा अभी मेरा चरवाहा है, And because he is my shepherd, I will not lack any good thing. और क्योंकि वो मेरा चरवाहा है इस कारणवश मुझे किसी भी बात की कमी नहीं It होगी। is just one verse, वो एक पद है, but when you meditate on it over and over again, और लेकिन जब हम उसके ऊपर बार बार जब ध्यान देते हैं, there's so much of revelation and understanding that the Holy Spirit gives from this one verse. और इस एक वचन के अंदर से परमेश्वर जो है विभिन्न प्रकार के प्रकटीकरण देगा, And that's why the Lord gives this instruction. और इसी कारण से परमेश्वर ये निर्देश हमें देता है। So Joshua 1:8, योशुआ 1:8, who is speaking that verse to whom? और वो वचन कौन किसके साथ बोल रहा है? Any idea? Huh? कौन परमेश्वर बोला? परमेश्वर। परमेश्वर यहोशू के साथ। Exactly. God is telling Joshua, परमेश्वर यहोशू से बोलता है because Moses is dead क्योंकि मूसा का देहांत हो गया and Joshua has to lead Israel. और योशुआ का समय आ गया है कि वो अगुवाई करे इजरायलियों को, And so God is giving a formula for success. और वो परमेश्वर जो है उसको एक सफलता का कुंजी दे रहा है, And he's saying, this is how you will have success. और वो कहता है, परमेश्वर कहता है इस प्रकार से तुम्हें सफलता प्राप्त होगा, And this is how you will have prosperity. और इस प्रकार से तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी। Okay, so when we come back from the break, which is at 3:05, we will continue with what could be some of those things that are blocking prosperity from us. और हम जब 3-5 को वापस आ जाएंगे तब देखेंगे क्या ऐसी रुकावटें हैं जो हमारे परमेश्वर की समृद्धि को रोक रहा है। Okay, so we'll take a break right now.